morning, sir. Good morning. Good morning. So let's wait for the few minutes such that other will join. So okay, I'm making someone as a co-host. Yes, yes, we have Mehtab Preet Kaur. Are you there? Mehtab Preet Kaur. So can I make you as a co-host? Please unmute yourself and respond. Okay. So Mehtab, please allow all the students after this. Okay. So now I'm going to share my screen. Yes. Is the screen visible? Yes, sir. So now we will go with that whatever we have done up earlier. तो थोड़ा सा उसका रिवाइज करते हुए we can be discuss up in whatever we can do up in today's lecture. So हमने अभी तक जो डिस्कशन किया है वो डिस्कशन किया है कि हम फंक्शन को f of x है अगर ये पीस वाइज कंटिन्यूस है और पीरियोडिक है then we can write up in terms of a Fourier series. तो उसमें हमने दो केसेस डिस्कस किए थे कि अगर मेरे पास इंटरवल जो है वो अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई है तब सीरीज क्या होगी या हमने डिस्कशन किया था कि अल्फा से बीटा के अंदर इंटरवल है तो सीरीज क्या होगी या बीटा को हमने लिखा था बीटा इज अल्फा प्लस 2l तो मींस दिस इंटरवल कैन आल्सो रिटन एज अल्फा टू अल्फा प्लस 2l. So in this case, we have the function is being periodic, means f of x plus 2 pi is equal to be f of x. And in this case, we discussed that this is the f of x plus 2l is equal to be f of x. और यहाँ 2l को आप लिख सकते हो कि 2l is the beta minus alpha, है ना? So here the period is like a beta minus alpha is a period. Okay, so you can also write that the period may be beta minus alpha. तो इस केस के अंदर हमने देखा कि जो इस केस के अंदर जो सीरीज है वो थी a नॉट पाई 2 प्लस समेशन a n cos n x प्लस b n sin of n x, है ना, where n is equal to be 1 to infinity.
और इस केस के अंदर हमारे पास सीरीज थी वी हैव a नॉट बाय 2 प्लस समीशन an cos of n pi x by l plus summation bn sin of n pi x by l out there and accordingly we can substitute the value. अब यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चन राइज होते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या हैं, we can say that कि what are the conditions under which we can write a given function as this series, and under what condition we can say that this series is being convergent when x is being converging to a number. ठीक है, तो मीन्स कुछ क्वेश्चन है जैसे कि अंडर व्हाट कंडीशंस या व्हाट आर द कंडीशंस on f of x such that so that we can write f of x, we have f of x is approximated as a series, or under what conditions it is being the given series is convergent. ठीक है, when x is being approaches to be some number. ठीक है, x is being approaching to be some number. So based upon these things we have the convergence criteria of a Fourier series. Now what is that convergence criteria? Now we'll discuss of the convergence criteria. So now I'm discussing about the Fourier series of the function f of x exists if it satisfies the following conditions. And what are those conditions are? पहली कंडीशन है कि फंक्शन f of x is periodic, that is f of x plus p is equal to b f of x, where p is the period of this function. Okay. Number two, f of x and its integral exist, or you can say that they are finite, or you can say they are existing. Okay. Number three, that we have already discussed of that f of x is a piecewise continuous function, that we already discussed of what are the piecewise continuous functions are there. And then number four, in a particular interval, whenever we're talking about this function has finite number of a maxima or minima. F of x has finite number of maxima or minima. If the given function is being satisfied of these four conditions, in that case the
Fourier series is being existing about, you can say that they are being converging to a given function f of x, or series being converging to a given function f of x. And these conditions are known as a Dirichlet's condition given by the mathematician Dirichlet, which have further studied about the Fourier series. So these are called Dirichlet's conditions. Okay. So now based upon this, we have to talk about the convergence of the given Fourier series whenever we have the point of a continuity or a discontinuity is there. So we can talk about now about that part. So now I'm discussing of that statement of a theorem without proof. Okay, so now I'm discussing of a condition is a Dirichlet's, Dirichlet's. So now I'm discussing of a theorem without proof. So they said that let f of x and f dash x be piecewise continuous functions on the interval, say minus L to L, then this is the dr, okay, Ri. On the interval minus L to L, then the Fourier series of f of x on the interval minus L to L converges to f of x at the point of continuity, converges to f of x at the point of a continuity, and it converges to f of x plus f of x negative divided by 2 at the point of discontinuity. Okay, so you can say that, अभी देखिए मैंने क्या बोला, suppose that the given function is being continuous at the point x naught. Suppose मैं say at the point of continuity लेते हैं x naught. In that case, it is being converging to be f of x naught. The f of x is being converging to be f of x naught. Okay, and suppose that you're taking up any arbitrary point at which the function is not continuous. Okay, in that case it is being converging to the right hand limit and the left hand limit ka average. So this is the right hand limit and this is the left hand limit, the point of at the point of discontinuity say x naught. ठीक है, तो x naught पॉइंट के ऊपर जो हम एवरेज लेंगे, ठीक है, से दैट, अब इस चीज को ध्यान से देखिए, से दैट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ये होता है कि अगेन हमने ऑलरेडी प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर भी डिस्कशन किया है कि ये जो सीरीज हमारे पास बनती है इसकी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया को हमने चेकआउट किया है कि कन्वर्जेंस क्राइटेरिया कैसे होगा, ठीक है, तो सीरीज कन्वर्जेंट कब होगा और उसका सम क्या होगा, उसके ऊपर अगेन क्वेश्चन मार्क था लास्ट टाइम में। कुछ सीरीज टेस्ट के साथ हम सम को निकाल पाते थे, बट इन ऑल द अदर टेस्ट वी कांट फाइंड द सम ऑफ अ सीरीज। तो बेसिकली
the Fourier series also help us to find up the sum of a series. तो ये हमें sum of a series के बारे में भी बात करने का मौका देता है कि how we can be check out all those. दूसरा कि using up this Fourier series we can talk about the convergence criteria. वो देखिए कि जैसे मैंने भी बोला कि discontinuity वाला पॉइंट अगर वापस करते हैं तो वहां पे हमने सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो थी एंड पॉइंट्स के ऊपर भी चेक करते थे व्हाट एवर द एंड पॉइंट वी हैव. तो इसी कारण से वी कैन टॉक अबाउट द एंड पॉइंट्स कन्वर्जेंस क्राइटेरिया. ठीक है. सपोज आउट, अब यहाँ पे देखिए सपोज आउट वी हैव मैं अब कोई भी इंटरवल लेता हूँ सपोज जिसमें फंक्शन जो है पीरियोडिक है और से इसका पीरियड जो है वो बीटा माइनस अल्फा यानी कि 2l है. ठीक है. से दिस इज द बीटा माइनस अल्फा. It means that after this interval again if I go with the next interval of a beta minus alpha, the value of the function should be repeated up, है ना. Similarly on the back side, if I took up again the beta minus alpha, again the value of the interval, value of the function should be repeated up because of a periodicity nature of the given function out there, है ना. ये जो भी periodicity है उसके according it should be repeated. Suppose out in the beta minus alpha if we can go up, the function is like this way. It's like a function. Similarly on this side it's like this way. Similarly here the function is like this way. ठीक है. अब अगर मैं suppose this point is alpha, this point is beta. ठीक है. ये हमारा बेसिक इंटरवल के अंदर है, बाकी जो है वो एक्सटेंडेड फॉर्म है. अब अगर मैं किसी फंक्शन के कॉन्टिन्यूस पार्ट पे उसे डिस्कशन करता हूँ, सपोज ये मेरा पार्ट है कोई डेल्टा, तो यहाँ तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है. इसका मतलब है द फंक्शन एट दिस पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट x नॉट, है ना, जो भी x नॉट था हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू सीधी मिल जाएगी. बट द क्वेश्चन इज हाउ वी कैन गो विद द एंड पॉइंट्स. ये जो एंड पॉइंट्स हैं इनके ऊपर डिस्कशन कैसे करेंगे. ये जो एंड पॉइंट्स हैं अल्फा और बीटा वाले, हाउ वी कैन बी फाइंड अप द डिस्क्रिप्शन अबाउट द एंड पॉइंट्स. क्योंकि किसी कोई बीच का पॉइंट जो है वो डिसकंटिन्यूअस वाला है इंटरवल का, तो उसमें हमने बता दिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से उसकी एवरेज लेके हम बात कर सकते हैं. जैसे कि सपोज आउट अगर आपको कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आता है किसी पॉइंट के ऊपर, जैसे सपोज आउट एक वैल्यू ये है एक वैल्यू ये है और इंटरवल आपके पास ऐसा था कुछ सपोज अल्फा और बीटा, है ना. तो यहाँ पे अगर आपने एक्स नोट पे चेक करना है, सपोज दिस इज द पॉइंट ऑफ एक्स नोट, तो एक्स नोट का लेफ्ट हैंड लिमिट ले लिया, एक्स नोट का राइट हैंड लिमिट ले लिया और उसका एवरेज ले लिया, है ना. तो वहां पे वैल्यू निकल आती है. बट व्हाट अबाउट द एंड पॉइंट्स. अगर एंड पॉइंट्स पे, क्योंकि यहाँ पे तो जो पीरियोडिक फंक्शन रहेगा तो एंड पॉइंट्स पे तो ब्रेकिंग आएगा ही आएगा. तो रूल इज दैट टू बी दैट कि अब हमने ऐसा लेना है कि क्योंकि इंटरवल हमारे पास ये वाला है ना, तो इंटरवल के अंदर ही पॉइंट लाई आउट करने चाहिए. तो इसका मतलब है हम अल्फा की लेंगे ये राइट हैंड लिमिट और बीटा की लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट. ठीक है. तो मींस वी हैव टू बी क्वेश्चन इज हियर इज लाइक to what value the series will converge at the endpoints. To what value the series will converge at endpoints. Endpoints means that is we have alpha and beta, है ना. ये जो भी अल्फा बीटा के बारे में, तो अगर मैं उसकी बात कर रहा हूँ तो सीरीज विल बी कन्वर्जिंग टू अ, कहाँ कन्वर्ज करनी चाहिए. यस, एनीबॉडी हैव एनी आइडिया. At the endpoints Fourier series converges to, yes, average of the right hand limit of alpha and the left hand limit of beta. ठीक है. तो ये आपने
पॉइंट्स कुछ याद रखने। सपोज और इसको मैं एक एग्जांपल से थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ। मैं एनी आर्बिट्ररी अभी एग्जांपल ले रहा हूँ, फूरियर सीरीज के बगैर ही ले रहा हूँ, कभी एक्सपेंड नहीं करूंगा फूरियर सीरीज से। जस्ट मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि कहाँ पे कन्वर्ट करेगी फूरियर सीरीज। सपोज आउट आपके पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और इसकी फूरियर सीरीज जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो सपोज हियर वी हैव सम वैल्यूज लाइक 0 इज लेस देन x लेस देन 1, ठीक है, and 1 is less than x less than equal to be 5, and say that 5 is less than x less than equal to be 7, and here the x value is x plus 3 and here we have x square plus 7। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो मेरे पास इंटरवल जो है वो है 0 से लेके 7 तक, है ना। Am I audible? Yes, sir. तो हमारे पास जो इंटरवल है वो 0 से 7 तक है। तो इसके बीच के जो पॉइंट्स हैं एट द पॉइंट 1 एंड एट द पॉइंट 5 वी हैव अ डिसकंटिन्यूटी। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर डिसकंटिन्यूटी है, बट आल्सो वी हैव टू बी चेक आउट एट द एंड पॉइंट्स। मुझे एंड पॉइंट्स के भी ऊपर देखना पड़ेगा, है ना, कि हाउ आई कैन गो विद द, कि अगर मुझे सीरीज निकालनी है एंड पॉइंट्स पे तो हाउ वी कैन बी टॉक अबाउट द कन्वर्जेंस क्राइटेरिया एट द एंड पॉइंट्स। अच्छा, तो सभी की डिस्कशन में करता हूँ। सपोज आउट पहला पॉइंट मैं ले लेता हूँ 2, अब इसके बीच में लाई आउट करेगा, है ना। अगर मैं x इक्वल टू 2 ले लूं तो 2 विल बी लाइंग इनसाइड द इंटरवल, इस इंटरवल के बीच में लाई आउट करेगा। अब 2 पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी है? 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है कि कॉन्टिन्यूटी? Continuous दिस इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी है। नहीं, डिसकंटिन्यूटी कैसे है? वन देखिए, ये फंक्शन जो है पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है आपका। अच्छा, जी कंटिन्यूटी, सॉरी। हाँ, कॉन्टिन्यूअस है ना। पीस वाइज डिसकंटिन्यूअस मींस पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस का मतलब है आपके पास 1 पे जंप है एक, तो दूसरी जंप 5 पे है ना। और ये फंक्शन अगर मैं पीरियोडिक लेता हूं तो उसके बाद 0 और 7 के बाद नेक्स्ट इंटरवल पे जो इसके बीच में जिसमें लेंथ जो है वो 7 रहेगी, उसमें फिर ये फंक्शन जो है पीरियोडिक रहेगा, उसका ग्राफ सेम आएगा, है ना। तो at x is equal to b the function is being a continuous, so this is a point of continuity। तो इसमें फूरियर सीरीज कहां पे कन्वर्ट करनी चाहिए अगर मैं x is equal to 2 लेता हूं तो? यस, F2। हाँ, f of 2 पे फूरियर सीरीज कन्वर्जेस टू f of 2, और f of 2 की वैल्यू क्या होगी? which is equal to be, अब ये वाला पार्ट 5 हो जाएगा 2 plus 3। तो इसका मतलब आपके पास जो भी फूरियर सीरीज आएगी वो 5 पे कन्वर्ट करेगी या पर्टिकुलर नंबर पे कन्वर्ट करेगी एट x is equal to be 2। okay, so this will be a convergence criteria that we can talk about। similarly, suppose अब मैं कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी लेता हूं। suppose x is equal to be 1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी था। ये क्या है? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। यस सर। अब अगर भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो फूरियर सीरीज यहाँ पे कहां पे कन्वर्ज करेगी? क्योंकि अब ये जो 1 है इट लाइज इन अ गिवन इंटरवल, बट हियर इट इज अ पीस वाइज कंटीन्यूअस, इट हैज जंप। इसका मतलब इट विल बी कन्वर्जिंग टू बी द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ अ 1 एंड द राइट हैंड लिमिट ऑफ अ 1 की एवरेज, है ना। इट विल बी कन्वर्जिंग टू बी अ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ अ 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 1 की? यस, फंक्शन क्या था? f of x आपके पास x square plus 1 है, when it lies between 0 and 1 है, और when it lies between 1 and 5 है, वैल्यू x plus 3 है, तो क्या आ जाएगा? 1 नेगेटिवली कहां पुट होगा? x square plus 1 में पुट होगा। ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1, और f1 पॉजिटिव वैल्यू कहां पुट होगा? 1 plus 3 में पुट अप होगा, x plus 3 में, तो 1 plus 3 क्या वैल्यू आ गई? 4 plus 2 6, 6/2 which is 3। In that case it is being converging to a point 3। अगर suppose मैं x is equal to be 5 ले लेता हूं, which is again a point of discontinuity according to my function। तो
इन दैट केस फूरियर सीरीज कहां कन्वर्ज करेगी? यस, एवरेज ऑफ 5 की लेफ्ट हैंड लिमिट और 5 की राइट हैंड लिमिट. व्हाट्स द वैल्यू नाउ? 5 की लेफ्ट हैंड लिमिट अब कहां सब्स्टिट्यूट होगी? x प्लस 3 में, और 5 की राइट हैंड लिमिट x के प्लस 7 में, है ना? तो 5 की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? वी हैव x प्लस 3 यानी कि 5 प्लस 3, और राइट हैंड लिमिट क्या है? 5 स्क्वायर प्लस 7/2. Just simplify and get the answer. अच्छा, now what about the whenever we can talk about the point 0 and point 7, which are the end points? अगर मैं end points लूं, अगर मैं end points लूं, whatever in that case, end points कौन कौन से points हैं? ये end points हैं. तो अगर मुझे end points पे देखना है तो कैसे देखेंगे? तो फूरियर सीरीज कहां पे कन्वर्ज करेगी? सर 0 की राइट हैंड ले लो और 7 की उसकी लेफ्ट हैंड दूसरे की. That case it is f of 0 plus f of 7 negative over 2, average of this one. तो 0 का पॉजिटिव देख लीजिए कहां पे है? राइट हैंड लिमिट ऑफ 0 which is 0 स्क्वायर प्लस 1 है, और 7 का नेगेटिव 7 स्क्वायर प्लस 7 है divided by 2, and this is the way that you can be found of the average. अब क्वेश्चन पे आते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आते हैं. ठीक है, नाउ वी कम टू द बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. दिस इज द वे आई कैन डिस्कस अबाउट द कन्वर्जेंस क्राइटेरिया. सर हाँ जी बेटा प्लीज. सर इसका मतलब हमें एक उसका पीरियड जो गिवन पीरियड होगा उसके बीच में उसके डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे ना. हाँ, यू हैव टू पिक, बिकॉज आप देखिए ना, आपके पास या तो फंक्शन जो है, देखिए क्वेश्चन तो आपके पास जो दिया जाएगा, आपने एक फंक्शन को फूरियर सीरीज में बनाना है, उसके बाद आपको बोला जाएगा कुछ शो करने के लिए कि डिड्यूस ऑफ दिस वन. जैसे अभी मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, एक्सपोज आउट. पहला क्वेश्चन है, इसमें है फाइंड द फूरियर सीरीज of f of x is equal to be pi plus x when the x lies between pi to 0, and when it lies between 0 to pi, its value is 0. ठीक है, and it's being given that this function is being a periodic in this interval. उसके बाद है hence deduce that, show that, you can say 1 upon 1 का स्क्वायर प्लस 1 upon 3 का स्क्वायर प्लस 1 upon 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन, इट इज इक्वल टू बी पाई स्क्वायर बाय 8. अब देखिए यहाँ पे पाई स्क्वायर बाय 8 जो फंक्शन है, जो उसकी वैल्यू पाई स्क्वायर बाय 8 आ रही है, उसका सीरीज आपने डेवलप कर दी, विच इज लाइक 1/1 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर एंड सो ऑन. और you have a series like 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर. वही आपने पिछले सेमेस्टर में इस तरह की जब भी सीरीज आ रही थी, उसके सम के बारे में आप बात नहीं कर रहे थे, आप उसमें सिर्फ कन्वर्जेंस क्राइटेरिया के बारे में ही बात कर रहे थे. सिर्फ कुछ सीरीज में आपके पास सम आ रहा था, लाइक ए टेलीस्कोपिंग सीरीज वगैरह की फॉर्म में, बाकी किसी में नहीं आ रहा था. अब यहाँ पे फूरियर सीरीज ने कुछ हद तक आपकी वो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू जो है वो गिवन दे दी. अब वो कैसे दी है वो देखिए अभी. ठीक है, अब नाउ वी कैन चेक इट आउट. ये कुछ कन्वर्जेंस क्राइटेरिया के ऊपर बात हो रही है कि अबाउट द पॉइंट, अब किस पॉइंट पे ये सीरीज बनेगी वो हमें डिस्कशन करनी है बाद में. तो सबसे पहले तो फूरियर सीरीज बनानी है. तो सबसे पहले फूरियर सीरीज अगर हम बनानी चाहते हैं तो व्हाट इज द फूरियर सीरीज हियर? सो वी हैव f of x is equal to be a naught by 2 plus summation of a n
कॉस ऑफ की आप ये माइनस पाई से पाई है, तो अगर आप पाई से डिवाइड करते हैं तो कॉस ऑफ एन पाई एक्स अपॉन द पाई, तो एन एक्स बचेगा प्लस समेशन ऑफ बी एन साइन ऑफ एन एक्स, वेयर एन इज इक्वल टू बी 1 टू इंफिनिटी। क्लियर? अब फाइंड द सीरीज नाउ। अब मैं सीरीज जो है अब खुद निकालेंगे, अब ए नोट ए एन की बी एन की वैल्यूज, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं बस आपको। तो ए नोट, अब ए नोट क्या निकलेगा? यस, व्हाट इज द फार्मूला फॉर द ए नोट? इट इज 1 ओवर पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये माइनस पाई टू पाई फंक्शन जो है ब्रेक हो जाएगा माइनस पाई टू जीरो प्लस जीरो टू पाई, और माइनस पाई टू जीरो फंक्शन की वैल्यू क्या है? पाई प्लस एक्स है, और जीरो से पाई उसकी वैल्यू क्या है? जीरो है, तो ये बात तो जीरो ही हो गया है ना। तो नाउ व्हाट द आंसर नाउ फॉर दिस ए नॉट आफ्टर द इंटीग्रेशन एंड माइनस पाई बाय 2, कितना? माइनस पाई बाय 2। चेकआउट करो एक बार दोबारा से। जीरो डालेंगे तो जीरो आएगा, बाहर माइनस भी है, तो whenever you substituted minus pi, हाँ 3 pi by 3 pi by 2, check it out again. We have a minus pi here, and minus of minus pi is plus pi, pi square आ जाएगा यहाँ पे, and here again minus of pi square by 2. Simplify it out. 2 pi square minus pi square is pi square by 2. So your answer is positive pi by 2. Clear? ये खुद निकालिएगा आगे, मैं जो a नोट a n की वैल्यूज, तो a नोट की वैल्यू आपके पास निकलाई पाई बाय 2, तो a n कैसे निकालेंगे? 1 by pi इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई f of x into cos of nx dx. ठीक है? So now again break it out. 1 by pi माइनस पाई टू जीरो, उसकी वैल्यू जो है वो पाई प्लस एक्स है, और जीरो टू पाई में उसकी वैल्यू जीरो है। नाउ यूजिंग अप जनरलाइज्ड इंटीग्रल फार्मूला इसे इवैल्यूएट कर लीजिए, गिव मी द आंसर। क्या आंसर आएगा? यूजिंग जनरलाइज्ड इंटीग्रल फार्मूला इवैल्यूएट इट आउट एंड अप्लाई द लिमिट्स। यस, इट्स अ 1 by pi into first function integration of a second minus differentiation of a first integration of a जो पहले इंटीग्रेशन करके आया था, and so on like this way, and apply the limits. We get the answer is like this one: 1 plus 1 minus 1 minus of minus 1 power the n upon the n square. After the integration, your value for the n is like this way. What's the bn now? इंटीग्रेशन कर लेना प्रॉपर्ली अपने आप, ठीक है? मैं सीधा आंसर लिखे अभी -1 by n. Yeah, it's a -1 by n. So after the simplification, you got the answer is a -1 by n, correct? So substituted all the values of a naught, a n and a b n in the given series. तो फूरियर सीरीज एक्सपेंशन आपके पास बन गई
अब आपके पास एफ ऑफ एक्स की जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है वो आ गई ए नोट बाय 2। अब ए नोट क्या आया था पाई बाय 2, तो ये तो हो गया पाई बाय 4 प्लस समेशन n इज इक्वल टू बी 1 टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू डाल लीजिए विच इज 1 माइनस ऑफ -1 पावर द n अपॉन द n स्क्वायर इनटू पाई इनटू cos ऑफ nx, और bn की डाल लीजिए प्लस समेशन n इज इक्वल टू बी 1 टू इन्फिनिटी, bn की वैल्यू थी आपके पास -1 बाय n इनटू साइन ऑफ nx। expand it out little bit, this becomes the pi by 4 plus, अच्छा अब अगर मैं n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो जब मैं n की वैल्यू 1 डालूंगा या 2 डालूंगा, व्हाट द आंसर नाउ हियर? अगर मैं n की वैल्यू 2 डालता हूँ तो 1 माइनस ये -1 की जो पावर 2 है ये 1 हो जाएगी और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इसका मतलब 2 4 6 8 एंड सो ऑन इवन नंबर्स पे ये टर्म 0 हो जाएगी, and only we will get up the values for the odd numbers। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2 अपॉन पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू cos of 1x प्लस 2 अपॉन द पाई इंटू cos of 3x अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 2 ओवर पाई cos of 5x अपॉन 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, साइन ऑफ 1x upon the 1 sin of 2x upon the 2 and so on। अब ये आपके पास सीरीज बन गई। अब इस सीरीज से आपने ऊपर वाला जो हमें क्वेश्चन आया था वो डिड्यूस करना है ना। अब डिडक्शन क्या थी, क्या प्रूव करना है आपने? यस अब आपने प्रूव करना है कि जो ये पाई स्क्वायर बाय 8 इज इक्वल टू भी क्या है 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसा ही है। अगर कुछ ध्यान से देखा जाए तो यानी कि वो वाले फंक्शन के अंदर वो जो एक्सपेंशन दी हुई है जो हमने इंट्रोड्यूस करनी है उसमें साइन वाला पार्ट नहीं है। अगर मैं यानी कि इस सीरीज के अंदर x की वैल्यू को 0 डाल दूं तो मेरे पास ये 1 का स्क्वायर 2 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये साइन 0 जो हो जाएगा सारा पार्ट साइन वाली सीरीज का खत्म हो जाएगा, है ना। बट 0 पॉइंट क्या है, 0 पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी है कि डिसकॉन्टिन्यूटी है? अगर आप फंक्शन को देखें, फंक्शन हमारे पास क्या था, discontinuity, डिसकॉन्टिन्यूटी, डिस्कंटिन्यूअस माइनस पाई टू 0 और 0 से पाई, ये फंक्शन था ना। तो 0 हैविंग अ ब्रेक, 0 having a jump, so you can say that x is equal to 0 is a point of discontinuity। अब ये ना जो आपको सीरीज प्रूव करने को बोला जाएगा ना, ये अब डिपेंड करेगा आपने क्या सब्स्टिट्यूट करना है। हो सकता है माइनस पाई पे आंसर आ रहा हो सकता है पाई पे आंसर आ रहा हो सकता है 0 पे आंसर आ रखा हो, या हो सकता है पाई बाय 2 पे आंसर आ रखा हो। अब वो लॉजिकली आपको चेक करना पड़ेगा, जो आपके पास फूरियर सीरीज बनेगी, जो भी फूरियर सीरीज बनेगी उसी फूरियर सीरीज से आपको डिस्कशन करनी पड़ेगी। अब ये तो जैसे मैंने बता दिया कि आप चेकआउट करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर सिर्फ कॉस वाले पार्ट में ही आ रहा है, तो मुझे कॉस वाले पार्ट में ही कुछ ऐसी फॉर्म करनी पड़ेगी कि मेरे पास कॉस वाला पार्ट रहे और दूसरा पार्ट जो है वो खत्म हो जाए। तो वी हैव टू बी कंसीडर अकॉर्डिंगली। तो 0 जो है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। सो एट x इज इक्वल टू 0 the function f of x converging कहाँ होना चाहिए? The Fourier series should be converging to, yes, left hand limit about the point 0 or right plus right, right hand limit about the point 0 and taking up the average। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अबाउट द पॉइंट 0 का मतलब है ये वाला, राइट हैंड लिमिट का मतलब है ये वाला, टेक अप द वैल्यूज, दिस इज द पाई प्लस 0 अपॉन 2, सो यू गेट द पाई बाय 2, है ना। तो आपका जो फंक्शन है वो पाई बाय 2 पे कन्वर्ज करेगा। अब जो फूरियर सीरीज आपने निकाली है, क्या निकाली थी फूरियर सीरीज आपने? ये निकाली थी एफ ऑफ एक्स। अब इस सीरीज के अंदर सब्स्टिट्यूट x is equal to be 0, say this is a,
ठीक है। सो इन ए सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू बी 0। तो उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है जो f ऑफ x है, अगर उसमें 0 डालोगे तो f ऑफ 0 जो है वो यहां पे कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब है f ऑफ 0 की वैल्यू विच इज पाई बाय 2। गॉट इट। तो जो आपके पास फंक्शन जो है वो कन्वर्ट करेगा पाई बाय 2 पे। तो आपके पास आ गया पाई बाय 2 इज इक्वल टू बी पाई बाय 4 प्लस 2 बाय पाई इंटू 1 बाय 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 का स्क्वायर प्लस 1 बाय 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। और साइन 0 वाले में डालोगे तो 0 ही आ जाएगा लाइक दिस वे। तो सिंप्लीफाई अप दिस पार्ट नाउ। इसको सिंप्लीफाई आउट करते थोड़ा सा। We found that here is the pi by 2 minus the pi by 4 is equal to be 2 by pi into 1 upon the 1 by square plus 1 by 3 ka square plus 1 by 5 ka square and so on. Simplify it out and multiply with the 2 over pi in the left hand side. We get that pi square by 8 is equal to be 1 by 1 ka square plus 1 by 3 ka square plus 1 by 5 ka square and so on. We get the answer. So this is the way we can be simplified up and we can find the expansion of a Fourier series and we can deduce some results or we can deduce some results from that. ठीक है। तो ये pi square by 8 can be written up in the form of a 1 by 1 square plus 1 by 3 square plus 1 by 5 square, or you can say that 1 by 1 square plus 1 by 3 square plus 1 by 5 square can be written up as a pi square by 8. This series. Clear? Any doubt? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा प्लीज। सर जो पिछले वाले लेक्चर में आपने एक मतलब ट्रांसफॉर्मेशन से मान लो हमें कोई फंक्शन गिवन था, उसका इंटरवल हमें जो स्टार्टिंग में था अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 12 था और हमने उसे z + 2 पाई में करा था। हाँ उसके हमने ट्रांसफॉर्मेशन करी थी, आपने बोला था कुछ। हाँ और हाँ। तो हमने z = x पाई बाय l लिखा था सर, वो कैसे आया था z देखिए z को x पाई बाय l कैसे लिखा था वो आपका डिपेंड करता था कि आपके पास आपकी हमने इंटरवल लेना था अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई सी। और मैं आपको लास्ट लेक्चर दिखाता हूँ, प्लीज वेट। अगर आप उसमें देखें यहाँ पे देखें हमने हमारे पास क्या था। हाँ ये हमने देखिए अकॉर्डिंगली चूज किया था क्योंकि हम चाहते थे, क्योंकि हमने अल्फा से अल्फा प्लस पाई में ऑलरेडी आंसर निकाल रखा है। यस सर। हाँ, तो अब हम चाहते हैं कि ये जो अल्फा कॉमा बीटा है ये भी कुछ ऐसी फॉर्म में ही लिखा जाए। वी हैव अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 2 पाई की फॉर्म में लिखा जाए, है ना। तो हमने क्या किया, हमने z को x इक्वल टू पाई बाय l लिखा। वो क्यों लिखा आप यहाँ पे देखिए। अब ये चीज ये जो हमने लिखी थी कि जब x की वैल्यू अल्फा है, जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो z की वैल्यू आ गई अल्फा पाई ओवर l आ गई ये चीज। यस सर ठीक है। और अगर आप x की वैल्यू को अल्फा प्लस 2l लेंगे तो z की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा पाई अपॉन द l प्लस 2 पाई आ गया। ये चीज देखिए। और अल्फा पाई ओवर l आपके पास z था तो यानी कि ये z प्लस 2 पाई आया। यस सर। तो हमें ऐसा लॉजिक लेना था, ऐसा फॉर्मेशन बनानी थी। सो खुद व्हाई से वी हैव टू बनाना था डिफाइन। सोच के कि कैसे हाँ हमारे पास हुआ है। यस, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने उसी को सोच के ध्यान में रखते हुए बनाई है। ओके सर, थैंक यू सर। या एनी अदर क्वेरी? नो सर, थैंक यू। So I think it's enough for today. So in the next lecture we'll be exploring some more properties of a Fourier series. Yeah, thank you. थैंक यू। Yes, sir. हाँ जी बेटा, फिट आउट। Thank you. No, sir.
Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir.